Welcome students in biology class. In previous video we described about the global warming and greenhouse effect. I hope that all of you clear from this video. Today we discuss the next topic which that is also related with the environment, that is the ozone depletion. Ozone depletion. ठीक है. First thing, where is the ozone is present? The ozone found in the upper part of the atmosphere called stratosphere means ozone present in stratosphere. That is clear? It is acts as a shield absorbing harmful ultraviolet radiation coming from sun. The main aim of the ozone layer, that is the absorption of UV rays, ultraviolet rays, which are harmful for the living organisms. They are trapped. That is clear? The thickness of ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured at the term of Dobson unit. जो थिकनेस है जिसके थ्रू हम मेजर्ड करते हैं उसको थिकनेस को आप ओजोन लेयर को, दिस इज नोन एज द डॉप्सन यूनिट, DU, डॉप्सन यूनिट. That is clear? So I think that in mind that is moving that how can ozone are form in the atmosphere. ओजोन का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में कैसे होता है? हाउ कैन द फॉर्म ऑफ लेयर्स? द ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. सो दिस इज द very clear that ozone is formed only due to the presence of UV rays. In the presence of UV rays, oxygen molecules that is converted into the ozones. It is also degraded into the molecular oxygen in the atmosphere. और वो UV rays में ही जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो डिग्रेड हो जाता है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन्स. That is form nascent oxygens, just like you see here. ये आपका ओजोन मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में फर्स्ट दैट इज स्प्लिटिंग इनटू द नेसेंट ऑक्सीजन. दिस इज नोन एज द नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. Then again this nascent oxygen combined with the oxygen molecules in the presence of UV rays, that is formation of ozone, O3. That is clear, just like you see here. ये रिएक्शन में देखिए O2 UV rays रेडिएशन के प्रेजेंस में क्या होता है? that is formation of nascent oxygens. ठीक है. and this oxygen molecules combined with the nascent oxygen, that is formation of ozone, O3. That is clear? So how can the form of ozone from these reactions? I hope that all of you clear about them. Okay? Next, in case of atmosphere, there are two type of ozones are present. One is the good ozones and another is the bad ozones. So what is the good ozones? Good ozone is found in the stratosphere. जो good ozone है वो कहाँ present होता है? That is present in the stratosphere, which is formed by an oxygen molecules. जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये फॉर्म होते हैं, बनते हैं. दिस टाइप ऑफ ओजोन इज द बेनिफिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस तरह के जो ओजोन है वो बेनिफिशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. दैट इज क्लियर? क्यों? क्योंकि ये यूवी रेस को ट्रैप करता है. दैट इज क्लियर. सो दिस इज नोन एज द गुड ओजोन एंड दिस इज द वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके.
whereas the bad ozone is found in the troposphere. अब बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रोपोस्फियर, मतलब स्ट्रेटोस्फियर के नीचे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है आपके। ट्रोपोस्फियर विच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ VOC एंड NO2, VOC एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। दिस टाइप ऑफ ओजोन इज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह ओजोन विच आर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर दैट इज द हार्मफुल for living organisms. So this is known as the bad ozone. That is clear. Next one, what is the ozone hole? सुनते हैं कि ओजोन में होल हो गया था, ये मीन्स नहीं है कि ओजोन में पोर हो गया, छिद्र हो गया है। नो, ओजोन होल मीन्स इट इज द लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर mainly ओवर अंटार्कटिक रीजन्स। ओजोन होल का मतलब होता है जो थिकनेस थी ओजोन की वो बिल्कुल थिन हो गई, पतली हो गई, जो मोटी, जैसे 25 किलोमीटर यदि थिकनेस थी उसकी ओजोन लेयर की, अब रिड्यूस होकर केवल 10 किलोमीटर बचा। तो ये क्या है? दिस इज द नोन एज द ओजोन होल, एंड नॉर्मली दैट इज शोइंग इन केस ऑफ अंटार्कटिका रीजन्स। At this point, depletion of ozone has occurred more as compared to the rest of stratosphere. अदर स्ट्रेटोस्फीयर के अपेक्षा सबसे ज़्यादा जो ओजोन डिप्लीशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका रीजन पर। दैट इज क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशंस? जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, इसका रीजन क्या है? हाउ कैन वी नो अबाउट देम कि हाउ कैन द ओजोन लेयर आर डिग्रेडेड? The balance of ozone production and degradation has been disrupted due to the enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbon. जितना ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जितना डिग्रेड हो रहा है, और ये डिग्रेड किसके थ्रू हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिकॉज दैट इज रिएक्ट विद द ओजोन्स, दैट इज first is break down them, then chlorine that is react with the oxygens. Okay, so what is the reason? First point, chlorofluorocarbons are widely used as a refrigerant, maximum ये refrigerant में use किया जाता है। when they are discharged in the lower part of atmosphere, they move upward and reach the stratosphere. ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर एरोसॉल बनाने के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम्स जो बनाया जाता है उससे जो निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वह लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में रहता है, वो कहाँ चला जाता है? देन मूव अपवर्ड, स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है। देन इन स्ट्रेटोस्फीयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में जब जाता है तो जो वहाँ पर यूवी रेज प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो क्या करती है? क्लोरीन को रिलीज कर देती है फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, एंड दिस क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन को ब्रेक करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज करते हैं और नेस्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस, इस रिएक्शन में क्लोरीन मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता। हैंस वंस CFC are added to the stratosphere, they have permanent and continuous effect on ozone level. यदि यह एक बार प्रेजेंट हो गया स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो परमानेंटली वो डिग्रेड करेगा किसको? ओजोन को। दैट इज क्लियर? सो हाउ कैन वी कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशंस? So for control of ozone depletions, there is the Montreal Protocol, an international treaty was signed in 1987 at Montreal, Canada, to control the emission of ozone depleting substances.
After Montreal, many other protocols have been made to control the emission of chlorofluorocarbon and other ozone depleting chemicals. ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए बनाया गया था 1987 में, जिसको सभी कंट्री फॉलो कर रहे हैं कि कम मात्रा में रिलीज करें रेफ्रिजरेटर का या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कम से कम इमिशन हो. ओके, सो व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ यूवी रेज. यदि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में न रहे तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द यूवी रेज, किस तरह का इफेक्ट डालेगा. इन द absence of ozone, DNA and proteins of living organism preferentially absorb UV rays and its high energy breaks the chemical bonds within these molecules. जो यूवी रेज है, यदि absence ओजोन नहीं है तो डीएनए एंड प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है दैट इज एब्जॉर्ब यूवी रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड. और जो डीएनए का या प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे ड्यू टू द यूवी रेज के कारण वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे विद इन दिस मॉलिक्यूल्स. दैट इज क्लियर. Means that is directly affect the living organisms. So what is the effect? First one, damage to DNA and leads to mutation. डीएनए को डैमेज कर देता है और म्यूटेशन को इंक्रीज करता है, म्यूटेशन सडनली चेंजेज आते हैं. दैट इज क्लियर. सेकेंड, डैमेज टू द स्किन सेल. स्किन सेल को भी डैमेज कर देता है, जैसे कॉजेज द बर्निंग ऑफ स्किन. ठीक है, स्किन कैंसर्स दैट इज कॉज देम. थर्ड वन, एजिंग ऑफ द स्किन. स्किन की जो लाइफ स्पॉन है उसको लास्ट स्टेज में एजिंग कंडीशन शो करने लगता है. नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर ड्यू टू द यूवी रेज विच आर डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, जस्ट लाइक दैट इज कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया है, WBC, ठीक है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, दैट इज कॉज थ्रू द यूवी रेज. इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, दैट इज द स्नो ब्लाइंडनेस. स्नो ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है. कैटरेक्ट डिजीज भी कॉज करता है. That is clear. So this is the harmful effect of UV rays. I hope that all of you clear from these slides or videos about how can the ozone depletion occurs, where ozone was present, what is the effect of UV rays, and what is the reason for the ozone depletion. That is clear. Thank you for watching the videos. If you like them, subscribe my channels. Thanks.